سانحہ گل پلازا سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان، عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر سول ڈیفنس اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ضلع جنوبی کو معطل کر دیا ہے۔ چیف انجینئر بلک اور انچارج ہائیڈرن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ فائر بریگیڈ کے پاس آگ بجھانے کے آلات ناکافی تھے۔ سانحہ میں 80 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ آگ لگنے کے وقت 2500 سے زائد افراد موجود تھے۔ محکمہ سول ڈیفنس نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ واٹر بورڈ کی جانب سے پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی۔ مزید کہا، کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ سانحہ پر سیاست نہیں کر رہے، اپنی کوتاہی مان رہے ہیں۔ انتظامیہ کی لاپرواہی، بے حسی نے 2 جانیں لے لی۔ لاہور داتا دربار کے قریب سیوریج میں ماں بیٹی گر کر جام بھگ۔ ماں کی لاش 6 گھنٹے بعد آؤٹ فول روڈ، 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد 8 کلومیٹر دور سگیاں پل سے ملی۔ 24 سالہ سعدیہ شورکوٹ کی رہائشی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ رشتہ داروں کے ہمراہ داتا دربار سلام کے لیے آئی تھی۔ پرندہ مارکیٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے سیوریج لائن کھلی تھی۔ کم روشنی کی وجہ سے بدقسمت خاتون موت کا گڑھا نہ دیکھ پائی۔ ادھر بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کی سیوریج لائن میں گرنے سے پہلے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ خاتون بچی اٹھائے داتا دربار کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ سعدیہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر شامل۔ کانٹریکٹر اور نجی کمپنی کو شوکوز نوٹس جاری۔ نیسباک ٹیم کے کردار کو بھی انکوائری کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ ماں بیٹی کی تلاش سے پہلے ہی واقعے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ ایل ڈی اے، ریسکیو اور واسا نے واقعے کو تسلیم ہی نہ کیا۔ پولیس نے بھی معاملہ دبانے کی کوشش کی۔ خاتون کے شوہر اور اس کے 2 بھائیوں کو ہراساں کرتے رہے۔ غلام مرتضیٰ کو مختلف تھانوں میں بٹھائے رکھا۔ شوہر، بیوی اور بیٹی کی تلاش کے لیے منتیں کرتا رہا۔ پولیس نے سب کو رات گئے چھوڑ دیا۔ جب ایک لاش ملی تو انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ حکومتی ترجمان اور انتظامیہ نے ریسکیو، پولیس اور سیف سٹی کیمروں کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کیوں کی؟ عارضی پارکنگ سٹینڈ کا قیام اور ترقیاتی منصوبے کے گرد حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ رات کے اوقات میں مناسب روشنی کا انتظام کیوں نہیں تھا؟ دلخراش واقعے نے سنگین سوالات کو جنم دے دیا۔ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬੈਠੇ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨੀ, ਫੇਕ ਹੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਕ ਹੋਲ? ਇਹ ਫੇਕ ਹੋਲ ذرا ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਫੇਕ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ماں اور معصوم بیٹی کی موت پر ہر آنکھ اشکبار، متاثرہ فیملی شدید کرب کا شکار۔ پولیس کے رویے سے سخت نالا۔ خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمارا کیا قصور ہے۔ ادھر شہریوں کا بھی المناک واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ کہا، ذمہ داروں کو کڑی سزا دی جائے، مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جب تک یہ کام ہو رہا ہے، یہ کھدائیاں ہو رہی ہیں، تو جو نالے یہ کھدائی کیے ہوئے ہیں، نالوں کے ڈھکن وغیرہ جو اترے ہوئے ہیں، ان کو پراپر بند کیا جائے تاکہ کوئی اور حادثہ، کوئی جانی نقصان اور نہ ہو۔ ٹھیکیدار ہیں، یہ چیز کھلی چھوڑ دیتے ہیں، نالا کھلا چھوڑا تھا، یہ حادثہ ہو گیا۔ اب یہ چیزیں لگی ہیں، پہلے کیوں نہیں لگائی انہوں نے؟ تو آج رات کو ایک واقعہ لاہور میں رونما ہو گیا، جہاں پہ داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی۔ نہیں، وہ فیک نیوز ہے، آپ چیک کریں سر، وہ میت مل گئی ہے سر۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر کی ڈھٹائی یا لا علمی؟ ماں بیٹی کی لاشیں ملنے کے باوجود سانحہ داتا دربار کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر کا کہنا ہے کہ میں نے پتہ کروایا ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ میتیں ملنے کے سوال کو بھی ظہیر اقبال چنر نے فیک نیوز قرار دے دیا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہنگامی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا رپورٹ کی روشنی میں سخت کارروائیوں کا عندیہ۔ آپریشن کی متضاد اطلاعات دینے والے تمام افسروں اور اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔
पुलिस, रेस्क्यू, वासा और ज़िली इंतज़ामिया वाक़े से मुतल्लिक तमाम पहलुओं पर मबनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करेंगे। पहला T20 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। साहिबजादा फरहान पहली ही गेंद पर आउट हो गए। साम अयूब 40, सलमान अली आगा 39 और बाबर आजम 24 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के एडम संपा 4 खिलाड़ियों को शिकार करने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी आउट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सफ़ीर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारियां संभालने पर सफ़ीर को मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर और अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली में ताउन पर इत्तेफाक। कहा यूरोपीय यूनियन से तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत के फ़रोग़ में GSP+ स्कीम के कलीदी किरदार पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज हर खतरे के खिलाफ मुकम्मल तैयार हैं। जंग की नोयत में नुमायां तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिसन का दौरा। कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज स्टेडफास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा भी किया। उस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत, मकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रही हैं। जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने जनूबी पंजाब के तलबा के लिए रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम मुआहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गजा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए महफूज और खुला मुल्क है। अमरीका की जानिब से जारी सफरी हिदायतनामा अपडेट है। अब अमरीकी शहरियों के लिए पाकिस्तान का सफ़र मज़ीद आसान हो गया। अमरीकी वीज़ा पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत इस्लामाबाद और वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तान अमन और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जंगी जहाज़ों की तादाद 10 हो गई। अमरीका का अहम तरीन जासूसी तैयारा RC-135 द रेविड जॉइंट कतर के अल उदैद फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंच चुका। 6 EA-18G ग्राउलर तैयारे भी मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना हो चुके। ईरान ने ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरानी अफ़वाज अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए हैं। अब ईरान इससे ज़्यादा तेज़ और मौसर रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सेनेटर इसाक डार का इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इसाक डार ने कहा कि मौजूदा हालात में मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए बातचीत और तहम्मुल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारे ने बानी PTI के पिम्स में तिब्बी मुआयने किए जाने की तस्दीक कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में तिब्बी माहिरीन ने बानी PTI की आंखों का मुआयना किया और उन्होंने तफसीली मुआयना तजवीज़ किया, जिसके बाद हफ्ते की शब उन्हें पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका मुकम्मल चेकअप किया। उन्होंने कहा कि बानी की तहरीरी रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई, जिसके बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत के साथ वापस अडयाला जेल ले जाया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की बीमारी को क्यों छुपाया गया, बानी के ज़ाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, हालात को मज़ीद संगीनी से बचाने के लिए मुलाकात कराई जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के फौरी तिब्बी मुआयने के लिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके कल समात के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट से हमें तशवीश लाहक हुई है। सोने की कीमतों को पर लग गए। 2 दिन में फ़ी तोला कीमत में 42,300 रुपये इजाफा। आज फ़ी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सोना 21,100 रुपये तोला महंगा हुआ था। फ़ी तोला सोने की नई कीमत 5,72,862 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6,000 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,82,338 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आला सिंध से गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो वायरस के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाया। नई पोलियो मुहिम ज़्यादा मुतहरिक, मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ होगी। ग्लोबल सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर ने सिंध हुकूमत की जानिब से पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा सर कट जाएगा लेकिन झुकेंगे नहीं। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। अमन खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। DG ISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा का कहना था कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राब्ता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा का कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम्मात के हवाले से DG ISPR की गुफ्तगू इंतहाई सेर हासिल रही। पाक बहरिया ने 14वीं बार कंबाइंड टास्क फोर्स CTF-150 की कमान संभाल ली। कमान संभालने की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर बहरीन में हुई। कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने CTF-150 की कमान संभाली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कमोडोर फहद अल जुएद ने कमान पाकिस्तान नेवी के कमोडोर मोहम्मद यासिर के हवाले की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और शाम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के। मरी और गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली ज़िला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। ज़ियारत से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल, राब्ता सड़कें बहाल। अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 65 हो गई। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से ज़ायद सारफीन बिजली से महरूम। अमेरिकन एयरलाइंस की 653 परवाजें मनसूख, जबकि 1000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रहीं। शिकागो में -14 और क्लैन में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। तूफान चंद्रा बरतानिया से टकराने के बाद मुल्क भर में बारिशें, बर्फबारी और तेज़ हवाएं चलने लगीं।
برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات۔ سٹارمر نے چین کو عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی قرار دیا اور کہا کہ وہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ موجودہ حالات میں چین کے ساتھ تعلقات ناگزیر ہیں۔ آج میں یہاں برطانوی عوام کو ذہن میں رکھتے ہوئے موجود ہوں۔ چینی صدر نے کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کہا کہ اچھی چیزیں اکثر وقت اور محنت مانگتی ہیں۔ یہ ایک صحیح کام ہے۔ ہمیں طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے، اختلافات سے آگے بڑھنا چاہیے، باہمی احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ چین نے برطانیہ کو ویزا فری سہولت فراہم کر دی۔